Combination clippers. So in this session we will discuss about combinational clippers. So what is the meaning of clipper? Clipper is a circuit which clips or removes some portion of the or all the portion of either positive half cycle or negative half cycle. क्लिपर्स का मीनिंग है ऐसे सर्किट्स जो पॉजिटिव हाफ साइकिल को रिमूव करेंगे या फिर नेगेटिव हाफ साइकिल को रिमूव करेंगे या कुछ पोर्शन को रिमूव करेंगे पॉजिटिव हाफ साइकिल के या फिर नेगेटिव हाफ साइकिल के। यहाँ पे अभी हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं कॉम्बिनेशन क्लिपर्स। अब ये टॉपिक का मीनिंग क्या है? सो कॉम्बिनेशन क्लिपर एज अ नेम सजेस्ट इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू क्लिपर्स। फर्स्ट इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बायास्ड पॉजिटिव क्लिपर एंड बायास्ड नेगेटिव क्लिपर। अब यहाँ पे बायास्ड का मीनिंग क्या है? जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है, बायास्ड का मीनिंग क्लिपर के साथ हम लोग एक बैटरी भी जोड़ेंगे। तो वो सीरीज में जोड़ना है, शंट में जोड़ना है, वो डिपेंड करता है कॉन्फ़िगरेशन हमको क्या चाहिए आउटपुट में। सो इसके लिए मैंने प्रीवियस वीडियोस अपलोड किए हैं जिसमें बायास्ड पॉजिटिव और नेगेटिव क्लिपर का मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है, तो हम इस सेशन में पूरा डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ पे सिर्फ बात करेंगे कि बायस्ड पॉजिटिव क्लिपर और बायस्ड नेगेटिव क्लिपर का यूज़ करके एक कॉम्बिनेशन क्लिपर कैसे बनता है और इसका आउटपुट कुछ इस तरह से होगा कि पॉजिटिव हाफ साइकिल का थोड़ा पोर्शन रिमूव होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल का थोड़ा पोर्शन रिमूव होगा। तो अभी हम लोग देखेंगे कि ये सर्किट कैसे बनता है और इसका आउटपुट कैसे आता है। सो पॉजिटिव हाफ साइकिल में कितना पोर्शन रिमूव करना है, नेगेटिव हाफ साइकिल में कितना पोर्शन रिमूव करना है, ये टोटली डिपेंड करता है कि हम लोगों ने बायस वोल्टेज कितना जोड़ा है। सो इट कैन क्लिप टू इंडिपेंडेंट लेवल्स, आइदर अ पॉजिटिव लेवल और a negative level depending upon the bias voltage. So it is totally dependent upon our circuit design as per our requirement. So I will draw the circuit first and then we will discuss the working. So I will quickly draw the circuit. Now I have drawn here the circuit of a combination clipper. So हम इसको नाम दे देंगे combination clipper. अब इसमें दोनों है पॉजिटिव क्लिपर एज वेल एज नेगेटिव क्लिपर। अब इसमें देखने की बात यह है कि जो बैटरी B1 है वो पॉजिटिव पोलैरिटी में है और बैटरी B2 जो है वो नेगेटिव पोलैरिटी में है। आई विल रिपीट, दिस इज अ सर्किट फॉर कॉम्बिनेशन क्लिपर। हियर the diode D1 and diode D2 are used. In addition with this diode, a series batteries has been connected. The battery B1 is in positive polarity and the battery B2 is in the reverse polarity. Why reverse polarity? Positive terminal grounded. Battery B1 forward polarity or positive polarity because negative terminal is grounded. Now we will see I have divided this circuit in two parts. This portion is somewhat different, this portion is somewhat different. Now if you focus our attention in this circuit, so this diode is acting as a positive clipper, this diode is acting as a negative clipper. So I write it down, positive clipper, and this is acting as a negative clipper. To be more precise, I will write this as this part 1 and part 2. So part 1 is positive polarity shunt positive clipper, and the second part is negative or reverse polarity
shunt negative clipper. So this is a combination, this circuit is a combination of these two clippers. Part 1, this diode, positive polarity of this battery, that's why positive polarity, shunt positive clipper. But first it is biased, so I will write biased here. It is biased, that's why positive polarity. This is also biased, that's why negative or reverse polarity. So depending upon the battery polarity, it is biased, positive or biased negative. So this is very important. We must identify which is positive polarity, which is negative polarity, which is positive clipper, which is negative clipper. Now what should be the input output voltage? Now during the positive half cycle, we will obtain battery voltage V1, VB1, and during the negative half cycle we will get this complete voltage, and the sequence will repeat like this. So the desired output is this solid line, this is output, and this red color dotted line is the input sine wave. So during the positive half cycle of the input AC, we will get only battery voltage VB1. It is a positive shunt clipper, so positive portion will be clipped. So if positive portion is clipped, means we will get only the battery voltage. Now this battery is positive, so we will get only the positive voltage. This diode is acting as a shunt negative clipper, so this negative cycle is clipped off, but this battery is connected in negative polarity, so we are getting the negative battery voltage, and the sequence will repeat for the next positive half cycle. Now to make it more clear, I will draw the individual equivalent circuit diagrams. I will replace this diode with open switch or closed switch, and I will show you how it acts as a positive clipper, negative clipper, that is a combination clipper. Now here I have drawn two circuits and I have not mentioned any diodes, so I have replaced the diodes with the switch. मैंने diodes को switch से अभी replace किया है. अभी हम लोग one by one we will discuss the working of combinational clipper during the positive half cycle of the input AC and during the negative half cycle of the input AC. Now we will discuss one by one circuit in detail. So first of all, we will focus our attention on what happens during the positive half cycle of the input AC. So during the positive half cycle of the input AC, the anode is connected to positive. The current will flow like this. It will divide. Okay. Now during the positive half cycle of the input AC, here it is positive polarity with respect to ground. Now as anode is directly connected to positive, this diode D1 is getting short circuited. Diode D1 is forward bias, so I have represented it with a closed switch. Hence this diode is acting as a short circuit for this input, and we measure the short circuit voltage. The voltage will be 0, but the point is that if you have short circuit as this is reverse bias, this is acting as open switch, means this battery will not come in the picture. So this is an open switch. This diode D2 is reverse bias, hence it is acting as an open switch. Hence this battery and this diode are not in any working condition. So it is useless to discuss about this because it is reverse bias, simply it is acting as an open switch. Now what happens?
this input is shorted with this diode. If input is shorted, means we will not get any voltage, we will get current. But now here a battery V1 is connected, VB1 is connected. So what we will get if the diode is getting short circuited? So what is remaining? Only the battery voltage VB1 is remaining. So here, please focus here. So here we are getting only the battery potential VB1, and in this way we will not obtain any positive cycle, but we will obtain the battery VB1 potential at the output during the positive half cycle. So once again I will repeat, पॉजिटिव हाफ साइकिल जब भी आ रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव पोलैरिटी आएगी, यहाँ पे नेगेटिव पोलैरिटी आएगी. एनोड मोर पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड. सो जो डायोड है D1, ये डायोड, द डायोड D1 इज एक्टिंग एज अ शॉर्ट सर्किट. अब इस डायोड ने शॉर्ट सर्किट बना लिया, इनपुट को मैंने शॉर्ट सर्किट कर दिया. इनपुट को शॉर्ट सर्किट कर दिया तो मुझे इनपुट में जो भी वेरिएशंस आ रहे हैं वो बिल्कुल नहीं मिलेंगे, वोल्टेज बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, करंट मिलेगा. हम यहाँ पे करंट प्लॉट कर रहे हैं क्या? नहीं, हम लोग यहाँ पे वोल्टेज देख रहे हैं. तो वोल्टेज मुझे बिल्कुल नहीं मिलेगा. तो फिर क्या मिलेगा? ये इतना आउटपुट मुझे कहाँ से मिल रहा है? अब क्या हो रहा है, ये तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा शॉर्ट हो गया. तो बचा क्या है? फिर बचा है सिर्फ ये बैटरी का पोटेंशियल. तो ये बैटरी हमें आउटपुट में जो भी इसका वोल्टेज है वो मिलेगा, इसलिए यहाँ पे लिखा है बैटरी VB1 पोटेंशियल. सो हमें आउटपुट में ये शेडेड पोर्शन मिलेगा ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल. ये क्यों आया पॉजिटिव हाफ साइकिल में बैटरी का पोटेंशियल? बिकॉज ये पूरा पोर्शन शॉर्ट सर्किट है, एक सिंपल कंडक्टर की तरह काम कर रहा है. अब कंडक्टर है और ये बैटरी है ना, मैंने बैटरी लिया और उसको तार से जोड़ दिया, तो बैटरी का जो भी सप्लाई है वही मुझे दिखने वाला है. इसलिए बैटरी का सप्लाई जितना है VB1 से, फॉर एग्जाम्पल अगर 5 वोल्ट है तो मुझे ये 5 वोल्ट यहाँ पे मुझे मिलेंगे. ओके, तो ये तो हो गया पॉजिटिव पोलैरिटी, पॉजिटिव क्लिपर. इसने पॉजिटिव साइकिल क्लिप कर दिया, मिला क्या? जो बैटरी का वोल्टेज है वही मिला. अब हम आते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल में. अब इस नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या हो रहा है? ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल एनोड है, नेगेटिव आ गया तो करंट ऐसे फ्लो होगा, इधर से फ्लो होगा, रिवर्स पोलैरिटी पे. ठीक है, तो ये जो डायोड है ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल, द डायोड D1 इज नाउ रिवर्स बायस बिकॉज एनोड इज नेगेटिव. सो डायोड इज एक्टिंग एज अ ओपन स्विच. यहां से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, ओपन स्विच है, तो मतलब ये जो पोर्शन है ये हमारे किसी काम का नहीं है, बिकॉज ये तो ओपन सर्किट बन गया. बिकॉज ये डायोड इज रिवर्स बायस, एनोड कनेक्टेड टू नेगेटिव, कैथोड कनेक्टेड टू पॉजिटिव. तो ये डायोड D1 रिवर्स बायस हो गया. डायोड D1 रिवर्स बायस हो गया तो ये ओपन स्विच की तरह काम करेगा, कुछ भी करंट कंडक्ट नहीं होगा, इसलिए ये सर्किट यूजलेस हो गया. इसके पहले हम लोग देखते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी यही चीज हुआ था कि डायोड D2 जो था उसका एसोसिएटेड सर्किट ये हमारे किसी काम का नहीं था, क्योंकि यहां पे ये डायोड रिवर्स बायस था, डायोड D2. लेकिन यहां पे डायोड D1 रिवर्स बायस हो गया, ओपन सर्किट हो गया, किसी काम का नहीं है. अब करंट कहां से फ्लो होगा? इधर से फ्लो होगा. अब यहां पे थोड़ा सा मैंने मिस्टेक किया, यहां पे कैथोड टर्मिनल होना चाहिए, मैं लिख देता हूं. यहां पे कैथोड है और यहां पे एनोड है. अब इस सर्किट में क्या हमें दिख रहा है कि एनोड कनेक्टेड टू पॉजिटिव, कैथोड कनेक्टेड टू नेगेटिव. तो ये बन गया हमारा फॉरवर्ड बायस और डायोड D2 इज एक्टिंग एज अ शॉर्ट सर्किट क्योंकि वो फॉरवर्ड बायस हो गया. एनोड कनेक्टेड टू पॉजिटिव, कैथोड कनेक्टेड टू नेगेटिव, सो डायोड D2 इज फॉरवर्ड बायस. अब डायोड D2 फॉरवर्ड बायस हो गया. अब डायोड D2 फॉरवर्ड बायस हो गया यानी जो भी इनपुट में आया ये तो शॉर्ट सर्किट हो गया, यानी इतना पोर्शन एक सिंपल कंडक्टर की तरह काम करेगा. जहां से मैं डॉटेड लाइन के ड्रॉ कर दिया, इतना पोर्शन, ये इतना पोर्शन जो है पूरा डॉटेड लाइन के इस साइड में एक सिंपल तार कंडक्टर वायर की तरह काम करेगा. मीन्स इसका इक्विवेलेंट क्या होगा कि एक कंडक्टर, ये बैटरी और यहाँ पे आउटपुट मुझे गिनना है, इतना बचेगा इसका इक्विवेलेंट सर्किट.
ये किसके है? ये डायोड D2 की कंडीशन है। ये ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल हमें इक्विवेलेंट ये मिलेगा। सो यहाँ पे जो भी बैटरी है, जैसे बैटरी VB2 है, तो हमें नेगेटिव हाफ साइकिल में जो भी नेगेटिव पोटेंशियल है वो मिलेगा बैटरी का। और इसने नेगेटिव को पूरा पूरा जो साइकिल है, नेगेटिव साइकिल, उसको पूरा क्लिप कर दिया है। जब पूरा क्लिप कर दिया है, लेकिन यहाँ पे बैटरी जोड़ी है, तो बैटरी का वोल्टेज हमें मिलेगा। तो ये बैटरी का वोल्टेज मिल रहा है। रिमेनिंग पोर्शन क्यों नहीं मिल रहा है? बिकॉज रिमेनिंग पोर्शन के लिए ये पूरा शॉर्ट सर्किट की तरह ये डायोड काम कर रहा है। इसी तरह से हम ये वाला भी बना लेंगे, पॉजिटिव हाफ साइकिल का भी बना लेंगे। पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमें क्या मिल रहा है? यहाँ पे जो भी VB1 का पोटेंशियल है, यहाँ पे कंडीशन डायोड D1, यहाँ पे हमें आउटपुट मिलेगा। तो ये हो गया आउटपुट फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये हो गया आउटपुट नेगेटिव हाफ साइकिल। सो वंस अगेन वी विल समराइज क्या हो रहा है। अभी भी बहुत सारे लोगों को नहीं समझा होगा, हम लोग फिर समझने की कोशिश करेंगे पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या हो रहा है। हम लोग फोकस करेंगे इस सर्किट पे और कंपेयर करेंगे इस सर्किट से। दो डायोड्स हैं, एनोड कैथोड, एनोड कैथोड, ऐसे मैंने टर्मिनल्स लिख दिया है। हमें ये पता है कि एनोड पे अगर पॉजिटिव पोटेंशियल आ गया और कैथोड पे अगर नेगेटिव पोटेंशियल आ गया, एनोड पे पॉजिटिव पोटेंशियल या फिर कैथोड पे नेगेटिव पोटेंशियल, तो डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस हो जाता है। इट इज एक्टिंग एज अ क्लोज्ड स्विच, इट इज एक्टिंग एज अ शॉर्ट सर्किट, इट इज एक्टिंग एज अ सिंपल कंडक्टर, सिंपल वायर के जैसे काम करता है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या हो रहा है? पॉजिटिव हाफ साइकिल जैसी आई, तो यहाँ पे पॉजिटिव पोलैरिटी आ गई, यहाँ पे नेगेटिव पोलैरिटी आ गई। एनोड पॉजिटिव पे कनेक्ट हो गया, कैथोड नेगेटिव पे कनेक्ट हो गया। ये डायोड D1 शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा। अब ये कैथोड पॉजिटिव पे आया, तो ये डायोड ओपन स्विच की तरह काम करेगा, रिवर्स बायस हो गया इसलिए। अब पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या हुआ? इतना जो पोर्शन है हमारा, शॉर्ट सर्किट की तरह काम कर रहा है, कंडक्टर की तरह। और ये जो पोर्शन है, ये तो किसी काम का ही नहीं। ये पूरा सेक्शन जो ब्लैक कलर की डॉटेड लाइन में दिखाया है, ये पूरा सेक्शन ही हमारे काम का नहीं है, बिकॉज यहाँ तो ओपन हो गया। डायोड D2 रिवर्स बायस था, इसलिए ओपन स्विच हो गया, ओपन स्विच हो गया, तो ये बैटरी इज एज गुड एज इट इज नॉट कनेक्टेड। ओके, तो अभी क्या बचा? सिर्फ ये बैटरी बची VB1। तो इतना पोर्शन डॉटेड, ये रेड कलर की डॉटेड लाइन जो है, इसके पहले जो भी पोर्शन है वो सिंपल एक कंडक्टर है। ये इतना कंडक्टर जो दो डॉट है उसको मैंने इससे रिप्लेस कर दिया। और ये जो रिमेनिंग यहां से यहाँ पोर्शन है, यहां से लेके यहां तक पोर्शन है। तो क्या बचा हमारा? सिर्फ बैटरी बची। तो बैटरी का पोटेंशियल पॉजिटिव हाफ साइकिल में आ गया। पूरा साइकिल क्यों नहीं है? बिकॉज वो पॉजिटिव क्लिपर है, पॉजिटिव के टाइम पे वो शॉर्ट सर्किट हो रहा है। शॉर्ट सर्किट हो रहा है तो वोल्टेज नहीं मिलेगा। कब शॉर्ट हो रहा है वो? कब सिंपल वायर की तरह काम कर रहा है? जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आ रहा है। वोल्टेज क्यों नहीं मिल रहा है? बिकॉज जब भी किसी भी कंडक्टर में से करंट फ्लो होता है, तो कंडक्टर के अक्रॉस हमें वोल्टेज नहीं मिलता। वोल्टेज वही मिलेगा जहां पे रेजिस्टेंस है। कंडक्टर का रेजिस्टेंस बहुत बहुत कम होता है, तो उसके अक्रॉस हमें वोल्टेज नहीं मिलेगा, हमें मिलेगा करंट। और हम यहाँ पे मेजर कर रहे हैं वोल्टेज। सो दिस इज आउटपुट वोल्टेज। बैटरी का वोल्टेज मिलेगा, बाकी ये साइकिल नहीं मिलेगी। नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या हो रहा है? अगेन डायोड D1 इज रिवर्स बायस, एनोड कनेक्टेड टू नेगेटिव, डायोड D2 का कैथोड कनेक्टेड टू नेगेटिव। तो ये जो डायोड है D2, ये हो गई शॉर्ट सर्किट, क्लोज्ड स्विच, फॉरवर्ड बायस। तो रेड लाइन के इधर वाला जो पोर्शन है पूरा कंडक्टर की तरह काम करेगा। ये जो सर्किट है ब्लैक डॉटेड लाइन का, ये वाला पोर्शन, ये किसी काम का नहीं है, बिकॉज इट इज एक्टिंग एज अ ओपन स्विच। तो इसमें कुछ भी जोड़ दो, कुछ काम का नहीं है। तो इट इज एट गुड एज देयर इज नथिंग हियर। तो व्हाट इज रिमेनिंग? अ सिंपल वायर। और वायर को क्या कनेक्ट किया है? बैटरी, नेगेटिव पोलैरिटी में। तो मैंने सिंपल वायर, ये D2 इसलिए लिखा है बिकॉज हमें पता चलना चाहिए कि ये D2 यहाँ पे डायोड शॉर्ट सर्किट हुआ है। D1 इसलिए लिखा है यहाँ पे, डायोड D1 शॉर्ट सर्किट हुआ है करके पॉजिटिव हाफ साइकिल में।
तो क्या मिला इस नेगेटिव हाफ साइकिल में? सिर्फ बैटरी का जो पोटेंशियल था, बैटरी VB2 का जो पोटेंशियल था, वो पोटेंशियल हमें आउटपुट में मिल रहा है, यानी ये रिमेनिंग जो नेगेटिव साइकिल है वो नहीं मिल रहा है, क्योंकि उस टाइम पे हमारा डायोड शॉर्ट सर्किट की तरह काम कर रहा है, कंडक्टर की तरह काम कर रहा है, और कंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज नहीं मिलेगा, हमें मिलेगा करंट, और हम मेजर कर रहे हैं यहाँ पे वोल्टेज। तो वोल्टेज किसका मिलेगा? बैटरी VB2 का। अब यहाँ पे बैटरी का पोलैरिटी रिवर्स है, हम लोग देख सकते हैं, प्लस को हम लोगों ने ग्राउंड किया है, यानी यहाँ पे माइनस पोलैरिटी वाला वोल्टेज मिलेगा, तो ये माइनस VB2 लिखा है, तो ये आउटपुट हमें मिलेगा ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल। सो दिस इज अबाउट अ कॉम्बिनेशनल क्लिपर। अगर हम लोग यहाँ पे एक चीज कर सकते हैं, हम लोग ये भी कर सकते हैं कि VB1 ग्रेटर देन VB2, VB1 लेस देन VB2, VB1 इक्वल टू VB2। पहली कंडीशन VB1 ग्रेटर देन VB2, तो ये जो वोल्टेज है, इतना वोल्टेज, इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू दिस। सेकेंड कंडीशन में अगर VB कम रहा एज कंपेयर टू VB2, तो ये वाला नेगेटिव एम्पलीट्यूड ज्यादा मिलेगा एज कंपेयर टू VB1। और अगर दोनों वोल्टेज VB1 एंड VB2, इस सर्किट में VB1 एंड VB2 दोनों का बैटरी का वोल्टेज सेम रहेगा, तो VB1 का जो एम्पलीट्यूड है और आउटपुट में, और VB2 का जो एम्पलीट्यूड है आउटपुट में, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम टू सेम रहेगा। और एक चीज हम लोग कर सकते हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, हम लोग इंटरेस्टिंग चीज ये कर सकते हैं कि अगर हम लोगों ने VB1 इज ग्रेटर देन V ऑफ I, यानी अगर हम लोगों ने इनपुट से ज्यादा बैटरी जोड़ दिया, सपोज इनपुट में आया सपोज से 5 वोल्ट्स, सिर्फ 5 वोल्ट्स, और बैटरी का पोटेंशियल है सपोज 6 वोल्ट्स फॉर एग्जांपल, तो हमें यहां पे पूरा 6 वोल्ट का डीसी वोल्टेज मिलेगा। यानी कहां तक जाएगा डीसी वो लेवल? 6 वोल्ट तक जाएगा, और सिर्फ बैटरी का वोल्टेज दिखेगा। सिमिलरली हम ये भी कर सकते हैं, VB2 ग्रेटर देन VI, तो क्या होगा? पूरा नेगेटिव वोल्टेज मिलेगा, पॉजिटिव में कुछ भी नहीं मिलेगा, क्लिप हो जाएगा। सो कोई भी वेरिएशंस कर सकते हैं हम लोग, जो ज्यादा रहेगा वो दिखेगा, जो वोल्टेज ज्यादा है वो दिखेगा इस कंडीशन में। और इस कंडीशन में तो मैंने पहले ही बता दिया, VB1, VB2. So this is all about the combinational clipper.